Hoyo na ruhanda Hoyo na ruhanda hona e suniha koi hoye na khaaban ne dil ਸਾਡਾ ਮੋਲਿਆ ਯੋਨਾ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਏ ਸੁਨੇਹਾ. Good evening. Well, it's wonderful to see everybody out on possibly one of the coldest days of the year. So thank you. I hope everybody's got that drink. We're not going to serve, as the announcement says, that we're not going to serve while the performance is happening. So welcome to our first chapter of Agla Varka in Gurgaon. Agla Varka was started last year in June by 3 people who are Punjabi but cannot speak Punjabi but have Punjab in their heart in a way. Rachna Kalra, Preeti Singh, and me, Mandira. So welcome to our first chapter here in Gurgaon at Coram. And Lodi is usually the coldest night of the year. It's a bonfire night. And while you won't have a bonfire here today, I'm hoping that you symbolically have one and you're going to rekindle your connection with Punjab. It's a land that we inherit. You may not speak Punjabi, but you all sit around a fire, very much like, stories were told, right? You sat around a fire, we chuck popcorn, and we sing Sundri Mundri Hoy. We hope to be able to connect you with who Sundri Mundri Hoy is. It's the story of Punjab as it was, the land of 5 rivers, no longer. I'm not sure you guys got a chance to see the video, but Punjab isn't the fertile land that we all have dreamt of or have heard of. By 2039, it's going to fall, groundwater levels are going to fall to 1,000 feet. Malwa is the cancer region of India. But we today want to tell you the story of real Punjab and the Punjab that we imagine. So this is the story of Bulle Shah. This is the story of Dullah Bhatti. This is the story of Heer Ranjha. And this is the story of all of us. Stories of... so my great-grandparents had no connection with the land. They were urban. One was a lawyer and one was a doctor. But we all, when we sit around the Lodi fire, we all tell the same story. And today we are hopefully going to tell you a story that you have possibly heard, possibly forgotten, a story of resilience, a story of spirit, a story of Punjab, and a story of all of us. I would like to welcome Reeni Singh, Sufi singer. She's an actor. She is everything Punjab. She is also trained in semi-classical, and she is wonderful. And also Manu Sikandar, who's a storyteller, wonderful artist, has worked with across forms and has performed with the best. So please enjoy your evening, and please remember, this is for Punjab. Thank you. So before we say anything, I'm going to start with a hamd, and then we come back and connect with you with our conversations. Awwal hamd Khuda da madhyam.
दादा विरद कीजे हो पहले आप नबी ने इश्क कीता हो ते माशूक है नबी रसूल मियाँ इश्क पीर फकीर दा मर्तबा है हो मर्द इश्क दा भला रंजूल मियाँ खिले तिन्हा दे बाग कलू बंदर हो जिन्हा कीता इश्क कबूल मियाँ जिन्हा कीता इश्क कबूल मियाँ जिन्हा कीता इश्क कबूल मियाँ It was God. It was God who loved first. And then love followed. That was the beginning of love. And they say, love follows those whose heart is pure and who loves with purity. खिले तिना दे बाग कलू बंदर जिना कीता है कबूल इश्क मियाँ. So let their heart, the garden of their heart, be filled with love, where there's purity and honesty. तो पंजाब धरती है 5 पानियों की, पंजाब धरती है मकबूल इश्कों की, पंजाब धरती है पीर फकीरों की, और पंजाब धरती है शूर वीरों की. Wow. So today we take you to the land of 5 rivers. It's an experiential evening. It's lovely to see you all here and reciprocate the feelings where we are going to talk about Punjab, its glory, the Sufi saints who have honored this land, their tales which they have penned down, the love ballads, the Ruh of Punjab, the soul of Punjab, some folk songs. So it's going to be a mix of the Punjab that has been over so many years. Baba Farid, 11th and 12th century, between that. His poetry has been, it has its place in Guru Granth Sahib, and many of his couplets and dohas have been brought down by the word of mouth and they have been penned down as well. Baba Farid. वेख फरीदा मिट्टी खुली, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डुली, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे,
ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਵੇ ਅੰਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ वाह ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਵੇ ਅੰਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ वाह ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖੁੱਲੀ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਏ ਤੇਰੀ ਨਾ ਏ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਏ ਤੇਰੀ ਨਾ ਏ ਮੇਰੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਢੇਰੀ वाह ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖੁੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰੁੱਲੀ मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली तो फिर क्या रह जाता है द लाइफ वी लिव द सीड ऑफ लव which is supposed to be and we have to take that forward सुल्तान बाहू कहते हैं अलिफ अल्लाह Alif is the first alphabet and then God. Alif Allah चंबे दी बूटी मुर्शिद दिल विच लाई नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई वाह अंदर बूटी the seed of love has been sown by my murshid and now what happens अंदर बूटी मुश्क मचाया हो मुश्क मचाया fragrance of that seed is now all over my body अंदर बूटी मुश्क मचाया हो जा फुल्लन ते आई हूँ blessed with the fragrance of the evolution of that booty, that seed. Feel free to enjoy this feeling, all of you. जीवे मुर्शद कामिल बाहू जे ए बूटी लाई हूँ Come on. अल्लाह चंबे
थैंक यू। ये तो रेनी कुछ उसी तरह की बात है कि खिले तिन्हा दे बाग कलू बंदर जिना कीता है इश्क कबूल मियाँ, बिल्कुल। कि जो इश्क को कबूल फरमाते हैं उनके रोम रोम महक जाते हैं। और इसी महक को 18th सेंचुरी में बाबा बुल्ले शाह ने महसूस किया। उन्होंने इश्क पर बहुत सारे कलाम लिखे और पंजाबी ज़ुबान में जितना बाबा बुल्ले शाह को पढ़ा गया है और गाया गया है, शायद ही किसी और शायर को गाया या पढ़ा गया हो, क्योंकि जो अक्ल के मदरसे से निकलकर इश्क के मैकदे तक जा पहुंचा और जिसने बेखुदी का जाम भी पिया। बाबा बुल्ले शाह इश्क के उस मुकाम पर पहुंच गए जहां उनकी ज़बान जनाना हो गई। बाबा बुल्ले शाह अपने कलामों में, अपने गीतों में अपने मुर्शिद को आशिक और ख़ुद को माशूक तस्लीम करते हैं। उनके इश्क को तलाशते हैं, उनके इश्क को गाते हैं, उनके इश्क में नाचते हैं, उनके इश्क में झूमते हैं और उनके इश्क में रंग जाते हैं और इश्क हो जाते हैं। आज मैनू इश्क दा रंग चढ़े आई, आज मैनू इश्क दा रंग चढ़े आई, वाह। आज मैनू ओने सदे आई, आज मैनू इश्क दा रंग चढ़े आई, आज मैनू ओने सदे आई, आज मैं खुद नू जमे आई, आज मैं खुद नू लभे आई, आज मैं खुद नू जमे आई, आज मैं खुद नू लभे आई, आज मैनू इश्क दा रंग चढ़े आई, आज मैनू ओने सदे आई, आज मैं कंबली हुई हाँ, आज मैं कमली हुई हाँ, आज मैं सुध नू खोई हाँ, आज मैं कमली हुई हाँ, आज मैं सुध नू खोई हाँ, आज मैं तितली वक्कन उड़नी हाँ, वाह। आज मैं तितली वक्कन उड़नी हाँ, आज मैं पतंगे तू जल्ली हाँ, आज मैनू इश्क दा रंग चढ़े आई, आज मैनू ओने सदे आई, आज मैं बिन शिंगार सजी हाँ, आहा। आज मैं बिन शिंगार सजी हाँ, आज मैं एवें ही हंसनी हाँ, आज मैं बिन शिंगार सजी हाँ, आज मैं एवें ही हंसनी हाँ, आज मैं खुद तू गल्लां करनी हाँ, आज मैं घूम 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 नचनी हाँ, आज मैनू इश्क दा रंग चढ़े आई, आज मैनू ओने सदे आई। क्या बात है, वाह। और इस इश्क को आगे बढ़ाते हैं। बाबा बुल्ले शाह अपने मुर्शद शाह इनायत के लिए नाचते हुए क्या कहते हैं? फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट अंडरस्टैंड सराइकी पंजाबी, इट्स अ मिक्स्ड ऑफ द लैंग्वेज पंजाबी सराइकी, but I'm sure you're getting the soul of what we are all speaking. तेरे इश्क नचाया हो। चौथे काले से भी आए, चौथे काले से वापस आइए। इस इश्क दे झंगे आइए आइए, हाँ इस इश्क दे झंगे विच मोर नचींदा, विच मोर नचींदा, विच मोर नचींदा, इस इश्क दे झंगी विच मोर नचींदा, सानू किबले ते काबे सोना यार दसींदा, सानू किबले ते काबे सोना यार दसींदा, सानू किबले ते काबे सोना यार दसींदा, सानू घायल करके हो
सानू घायल करके फिर खबर न लेंदा, फिर खबर न लेंदा, फिर खबर न लेंदा। छेती आवी वे तबीबा छेती, कोड़ी वे तबीबा छेती, आवी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गया। So this is Baba Bulle Shah's longing. Come on, where are you? If you don't come, my life is over. क्या बात है? तबले पे मेरे साथ है शांति भूषण। क्या बात है? हारमोनियम पे है बदलूगा साहब। He is one of the most senior musicians in the country. Come on, I think we need to give them, enjoy the music and clap along. Yes. ओले छुप गया सूरज बाहर, रह गई लाली। The time of the sunset. छुप गया सूरज बाहर, रह गई लाली। वे मैं मुर्शद हुआ देवा, मुर्शद खाली। वे मैं सदके होवा देवा, मुर्शद खाली। अड़िया मैं भूल गईया अड़िया मैं भूल गईया, तेंडे नाल न गईया, तेंडे नाल न गईया। छेती वे तबीबा छेती, थोड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गया, नहीं ता मैं मर गया। Satish Solanki ji, he is a multifaceted person with about different instruments. He gives us the flavor of any piece we sing. And in the end, बुल्ले शाह जी क्या कहते हैं? वो अपने शाह इनायत जी से कहते हैं, it's a dialogue between them. बुल्ले शाह नु सदो, हाँ जी, बुल्ले शाह नु सदो बुलाओ। बुल्ले शाह नु सदो, हाँ बुल्ले शाह नु सदो। शाह इनायत दे बुए, शाह इनायत दे बुए। जिन्ने मैनू पवाए, जिन्ने मैनू पवाए चोगे सावे ते सुए। He's the one who has adorned me in this gear, colored me in his love, colored me in his color. जिन्ने मैनू पवाए चोले सावे ते सुए। अड़िया मारी है अड्डी हो, जा मैं मारी अड्डी फिर खबर न लेंदा। छेती आवी वे तबीबा छेती, पौड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गईया, नहीं ता मैं मर गईया, नहीं ता
इश्क नचाया छेती आवी वे तबीबा छेती पौड़ी वे तबीबा छेती आवी वे तबीबा छेती पौड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गया नहीं ता मैं मर गया नहीं ता मैं मर गया हो। वाह वाह, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। रेनी, मुझे कुछ याद आ गया। जैसे मैंने अभी बताया कि बाबा बुल्ले शाह जितने बताइए। मकबूल शायर हैं, शायद ही कोई पंजाबी में कोई और हो, तो अब तो हमारी जो बॉलीवुड फिल्म्स हैं उसमें भी कई गीत ऐसे हैं जो बाबा बुल्ले शाह के कलामों पर इम्प्रोवाइज होकर बने हैं, और थैया थैया भी उनमें से एक है। उस पर हमारे फिल्मों के पंजाबी शायर पीर गुलजार साहब ने उसे इम्प्रोवाइज़ किया। आप में से कोई नाम बता सकता है उस सॉन्ग का कि वो कौन सा सॉन्ग है? नहीं, मैं बताता नहीं हूँ। नहीं रुकिए, पहले आप बताइए एक बार। यू हैव टू गेस बेस्ड ऑन। जी, मेरी चल- गुरु बहन यहाँ जी, बैठी है, आप- उन्होंने ही बता दिया। छैया छैया सॉन्ग। जी जी बिल्कुल, छैया छैया, ये उसी पर based on थैया इम्प्रोवाइज थैया। होकर बना है। देखिए कैसा चक्र है कि कभी बुल्ले शाह ने थैया सोच थैया सकते। लिखा, और अब 300-400 200 300 साल बाद, 400 साल बाद गुलजार साहब उसको इम्प्रोवाइज करके लाए हैं। तो ये चरखा है, जो चरखा है जो चल रहा बिल्कुल चल है, रहा लगातार चल रहा है इश्क का चरखा। जी इश्क का चरखा चल रहा है। एज वी स्पीक ऑफ पंजाब, हमारे सूफी संतों ने तो दे हैव, इफ वी स्टार्ट टू रीड अप ऑन देम, थोड़ा सा भी अगर हम उसको अब्जॉर्ब कर लें तो वी रियली कैन स्टार्ट टू be on that spiritual path. Of course, it's a lifetime, many lifetimes maybe. But we are blessed कि ऐसे ऐसे पीर, ऐसे ऐसे सूफी saints आए who have given us that poetry, the lyrics, and those seeds of words which take us on that, higher path, if we even make it to that. So पंजाब की जब बात आती है तो there are so many symbolic things we can relate to. सरसों का साग, खेत, rivers, हमारी नदियाँ, also चरखा. Charkha is very relevant and symbolic in longing and love both. Every young girl or every poetry you see is sort of intertwined into the two. They go back, weaving their charkha, they kind of go back to their love tales and the memory of their beloved. So it's a relationship between the lover and the beloved, the love and the longing. So I will sing you a piece which is very dear to my heart. सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा. When I listen to the charkha, I only think of him. Many of us here who belong to Punjabi families, we've heard songs like नील मैं कथा परीता नाल चरखा चंदन दा, then वे मैं तेनू याद करा जद चरखे वल वेखा. So this is one of those. सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा. Maya मैनू, I can think, I miss my lover. I just can only imagine him when I hear the sound of my charkha. वाह क्या बात है. सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा. वाह. मेरे दिल विच उठ दिए हुक माया मैनू याद आवदा. सुन चरखे
ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ This melody has so much of depth and longing and pain. Now, what does she say? Mahi avega te nazran bichhavangi nazran bichhavangi ਉਹਦੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਖੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਡਾਢਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਯੂਸ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ 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 Thank you. हम थोड़ी थोड़ी तो झलक अभी दे तक- रहे हैं जी, थोड़ी जी। थोड़ी झलक दिखा रहे हैं अब आपको जी, हम क्योंकि जी वक्त we कम है। have जी so तो अभी तक हमने पंजाब के पीरों फ़कीरों की बात की, शायरों की बात की, बाबा फरीद की बात की, शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, बाबा बुल्ले शाह की बात की, जिन्होंने कि अपनी तमाम ज़िंदगी बहुत सारी पोइट्रीज लिखी, बहुत सारे कलाम लिखे। लेकिन इसके बाद 18th सेंचुरी में ही एक ऐसे शायर आए जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी में सिर्फ एक किस्सा लिखा और उसको 629 पोइट्रीज में लिखा, कलाम में लिखा। उन्होंने कुछ नहीं लिखा, एक ही किस्सा लिखा और वो ऐसा लिखा कि वो पंजाब की धरती की रूह बन गया, जान बन गया, गीत बन गया, संगीत बन गया और पंजाब की हर शाम बन गया। वाह पंजाब उसके मतलब उसके नाम से पंजाब है या पंजाब के नाम से वो है। तो आप में से कोई बता सकता है वो किस्सा कौन सा है? हाँ हीर राजा जी जी बिल्कुल जी, किस्सा हीर वारिस शाह साहब ने 1765 में 1765 में लिखा था 629 पोइट्रीज में। उन्होंने तमाम ज़िंदगी में सिर्फ एक किस्सा लिखा जो कि लाफानी हो गया, अमर हो गया। तो जस्ट फॉर ऑल आवर इंफॉर्मेशन आप ये बताएं कि ये हम हीर रांझे का रेफरेंस
बुल्ले शाह की पोइट्री में भी देखते हैं और बाकी के बहुत सारे संतों की वाणी में देखते हैं। तो वारिस शाह में इतना क्या स्पेशल है, क्या फ़र्क है बाकियों से? देखिए कि जो किस्सा था ये जो सच्चा किस्सा वो घटा है 1200-1300 के आसपास, और उसे और भी शायरों ने लिखा, पोइट ने लिखा, जैसे दामोदर दास ने लिखा, शहनशाह अकबर के दरबारी शायर थे गंगा भट्ट, उन्होंने लिखा। लेकिन बुल्ले शाह ने अपनी पोइट्री में उसे इस्तेमाल किया, बहुत जगह पे उसको वो आता है। लेकिन वारिस शाह ने उसे ऐसा लिखा कि उन्होंने अपने आप को 3 साल के लिए कमरे में बंद कर लिया था, और वो 629 पोइट्री लिखी, और उन्होंने उसमें खुद लिखा है कि वो खुद शायर खुद ही लिख रहा है, पोइट्री जो पोइट है वो लिख रहा है कि मेरा एक एक शब्द वो मोती के समान है, और वाकई में मोती है, और मैं उसकी माला बनाकर आपको दे के जा रहा हूँ। अब तमाम ज़िंदगी जो है, जो दुनिया है, जो सदियाँ हैं, उसे पहनेगी, और उससे जी। तो आप अपना एक फेवरेट सीन एक कहानी की तौर से छोटा सा किस्सा सुना दीजिए। मनु ने बहुत काम किया है हीर पे, तो एक अपना जो आपको लगता है एक हाईलाइट है इसका किस्से का, तो एक छोटा सा किस्सा सुनिए आप। चलिए। जी, वैसे तो बहुत लंबी है, हाँ, लेकिन आप मैं छोटा सा हीर वारिस शाह के किस्से का छोटा सा हिस्सा है जो मुझे भी पसंद है। तो चिनाब दरिया है, पंजाब में बहता है, इतना फैला हुआ है कि उसके एक किनारे से दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। इसी चिनाब दरिया के एक तरफ है झंग, यहाँ की रहने वाली है हीर, बहुत सुंदर है, भला की सुंदर है, 70-70, 80-80 कोस दूर तक उसके चर्चे हैं। और दूसरी तरफ से तख्त हज़ारा, जहाँ का रहने वाला है रांझा। रांझे के 7-8 भाई हैं, 2 बहनें हैं, इकलौता है, मतलब लाडला है, तो ज़्यादा काम वाम नहीं करता है, भाई उससे नाराज़ रहते हैं, तो ज़मीन का बंटवारा वगैरह हो जाता है। अब भाभियाँ जो हैं उसे ताना देती हैं एक बार, क्योंकि ये कुछ करता नहीं था, बस शीशे के आगे खड़ा रहता था, बालों को संवारता रहता था। तो एक बार भाभी ने ताना दिया कि वे दीदो, रांझे को दीदो भी बोलते हैं, वे दीदो, अगर तू इतना ही गबरू जवान है तो जा सियालों की, झंग सियाल की जो बेटी है, हीर है, उसको ब्याह के ले आ, मतलब उससे शादी करके आ। अब ये जो है बिल्कुल अलग पगला टाइप बंदा है, तो ये आप देखा ना ताब अगली सुबह जो है सर पर कंबल की ओट लेता है, बांसुरी हाथ में लेता है, बांसुरी बजाने का बहुत शौक़ है, और बिना कुछ उसकी जेब में कुछ नहीं है, और वहाँ से निकल पड़ता है। अब उसे हीर तक पहुँचने के लिए, झंग तक पहुँचने के लिए एक दरिया जो है, ये चिनाब दरिया पार करना है, इसके पास पैसे नहीं हैं, तो एक लुड्ढन मल्ला है जिसकी एक बहुत बड़ी नाव है, उस पर इसे बैठने के लिए उससे गुजारिश करता है, वो इसे मना कर देता है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं हैं। तो लुड्ढन की 2 बीवियां हैं जो रांझे की बांसुरी पर, उसकी सूरत पर फिदा हो जाती हैं, और वो उसे लुड्ढन की मर्जी के बिना ही किश्ती पर चढ़ा देती हैं। तो रांझा जैसे ही किश्ती पर चढ़ा, उसे यूं लगा कि जैसे रब ने बंदे के सारे गुनाह माफ करके उसके लिए जन्नत के दरवाजे दोबारा खोल दिए। रांझा किश्ती में आगे बढ़ा तो उसकी नज़र किश्ती के बीचों बीच पड़े एक बहुत ही खूबसूरत पलंग पर पड़ी, जो चारों तरफ से रेशमी पर्दों से ढका था, जिस पर मखमल का गद्दा लगा था जो कि पुलकारी की चादर से सजा था, वो तकिया मुशक्की महक से भरा था। रांझा किश्ती में बैठना चाहता था कि मुसाफिरों ने उसे रोकर कहा, ये पलंग बादशाह सियालों की शहजादी मेहर चूचक की बेटी हीर का है, जिससे शाह परियां भी पनाह मांगती, जो मखमल के कपड़े में लिपटी हुई कस्तूरी सी है। इस पलंग पर सिर्फ वो ही सफ़र करती है, इसलिए किसी गैर का इस पर बैठना मुनासिब नहीं है। तो रांझा एक तरफ खड़ा हो जाता है और बांसुरी बजाने लगता है। अब कुछ ही घंटे बाद जो है किश्ती दरिया की दूसरी तरफ पहुंचती है, तो रांझे को नींद का झोंका आ जाता है और वहीं पलंग पर गहरी नींद सो जाता है। अब जब ये बात हीर को पता चली कि एक अजनबी उसकी सेज पर गहरी नींद सोता है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी सास सहेलियों को साथ लिया और इस अजनबी का दिमाग ठीक करने निकल पड़ी। गुस्से में तमतमाती हीर आगे आगे और उसकी सास सहेलियों का हजूम पीछे पीछे। इस वक्त हीर की छब ऐसी लग रही थी कि मत्थे चमकदा हुस्न महताब दज।
खूनी चूड़ियां रत ज्यों चन गिरदे, वाह सुर्ख रंग ज्यों रंग शहाब दा जी, वाह नैन नरगिसी मिर्ग ममोलड़े दे, गल्लां ठैकियां फुल गुलाब दा जी। वाह भवां वांड कमान लाहौर दे सन। उस वक्त लाहौर की जो तीर कमान है बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। भवां वांड कमान लाहौर दे सन, कोई हुस्न न अंत हिसाब दा जी, कोई हुस्न न अंत हिसाब दा जी। तो हीर गुस्से में दौड़ी दौड़ी अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंची और एक अजनबी को अपनी सेज पर खराटे मारता देख उसके तो तन बदन में आग लग गई। उसने एक छड़ी उठाई और रांझे को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारती, उसकी नजर उसकी शक्ल पर पड़ी और बस वहीं ठगी सी खड़ी रह गई। हाथ की छड़ी हवा में रुकी थी कि तभी सूरज की किरणें हीर की परछाई बनकर रांझे के चेहरे पर पड़ी तो उसकी भी आंख खुल गई। उसने हीर को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने भी ऐसा खूबसूरत हुस्न पहले कभी नहीं देखा था। रांझे ने हीर से छड़ी ले ली, लेकिन निगाहें हीर से वैसे ही लगी थी। वारिशा जन नैना दा दाव लगे, वारिशा जन नैना दा दाव लगे, कोई बच्चे ना जुए दी हार विचों, कोई बच्चे ना जुए दी हार विचों। पंजाब की रूह पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रंग बदलते हैं। इन अखियां च पावा के वे कजरावे, अखियां च तू वसदा, पावा के वे कजलावे, अखियां च तू वसदा। हर वेले चन्ना मेरा तेरे अगे मूवे, हर वेले चन्ना मेरा तेरे अगे मूवे, तेरे अगे मूवे। हासे आच ना तेरा बुनिया च तू वे, बुनिया च तू वे। तो जदों हसदी भुलेखा मैनू लगदा ए, हासियां च तू वसदा। जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा ए, हासियां च तू हसदा। इन्हां अखियां च पावां के वे कजलावे, अखियां च तू वसदा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं? थैंक यू। And I feel that you are also in this space and feeling this emotion. इन्ना अखियां च पावां के वे कजरावे, अखियां च तू वसदा। हाँ, क्या बात है। हाँ, लंबियां सी बातां चना नेड़े नेड़े आया तू, नेड़े नेड़े आया तू। लंबियां सी बातां चना नेड़े नेड़े आया तू,
गम सातो दूर नसदा हुन खुशियां दा हो गया सवेरा वे गम सातो दूर नसदा इन्ना अखियां च पावां के वे कजरा वे अखियां च तू बसदा इन्ना अखियां च पावां के वे कजरा वे अखियां च तू बसदा अखियां च तू बसदा अखियां च तू बसदा जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे हासियां च तू हसदा जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा है हासियां च तू हसदा मेरे अखियां च तू बसदा मेरी अखियां च तू बसदा थैंक यू तो चिनाब दरिया Thank you. के इर्द गिर्द बहुत से पंजाब के किस्से जो है वो घटे हैं। एक किस्सा सोनी महिवाल का भी रहा, उसके बाद मिर्ज़ा साहिबा। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ कि जहाँ चिनाब नहीं, कुछ पंजाब में जो एक रेगिस्तान है वहाँ भी एक इश्क का किस्सा जो घटा, Can I have some water, जो कि please? बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो जब पुन्नू के भाई जो हैं, अब इश्क में क्या होता है वो तो सबको मालूम है, आप समझ जाएंगे। तो जब पुन्नू के भाई जो हैं शशि से दूर ले जाना चाहते हैं पुन्नू को, और वो जाना नहीं चाहता है, तो वो उसे बहुत शराब पिलाते हैं, और उसको जब वो नशा के हालत में आ जाता है तो वो उसे लेकर अपने देश चले जाते हैं। और शशि जो है पुन्नू की तलाश में भूखी प्यासी नंगे पांव तपते हुए रेत पर महीनों चलती है, इस आस में कि एक दिन पुन्नू सजे धजे ऊंट पर सवार होकर आएगा और उसे अपने साथ अपने देश लेके जाएगा। Wow. So another very soulful piece. I think, yeah, how many people know Punjabi here? कम है, Okay, काफी है फिर काफी भी. है। So this is a piece which I think it's again coming, down the ages with family weddings. It's a folk. It's I have grown up listening to my mother sing this song, so I will sing this. डाची वालिया मोड़ मुहार वे डाची वालिया मोड़ मुहार वे प्लीज सिंग along whoever knows this सोनी वालिया ले चल नाल वे how many of you know Punjabis डाची की है what is डाची camel ऊंट डाची वालिया मोड़ मुहार वे सोनी वालिया ले चल नाल वे ओ डाची वालिया मोड़ मुहार वे सोनी वालिया ले चल नाल वे डाची Nice. क्या बात है तेरी डाची दे गल विच टलियां तेरी डाची दे गल विच टलियां होनी मैं पीर मनावण चलियां हो डाची वालिया मोड़ मुहार वे सोनी वालिया ले चल नाल वे
Mohar is the saddle. Mod Mohar. Dachi Valaya. Turn it around. Come back to me. Because why? I have to go to pray for you. To the peers. For your good health. सुनिए क्या कहते हैं. तेरी डाची दे चुमनियां पैर वे तेरे सिर दी मंगनियां खैर वे हो तेरी डाची दे चुमनियां पैर वे तेरे सिर दी मंगनियां खैर वे साडी जिंदड़ी नू इंज ना गाल वे वो डाची वाले ले चल नाल वे वो डाची वाले ले चल नाल वे सोनी वाले ले चल नाल वे क्या बात है वाह तेरी डाची दे सदके मैं जानिया सदके कितना प्यारा नाम है ना कितनी प्यारी टर्म है तेरी डाची दे सदके मैं जानिया पंजाब पीरा नु पई मैं मनानिया हाँ। पंजाब पीरा नु मैं मनानिया पीरा नु पई मैं मनानिया सुखा सुखनिया तेरिया नाल वे हो सुखा सुखनिया तेरिया नाल वे हो डाची वाले मोड़ मुहार वे हो डाची वाले मोड़ मुहार वे सोनी वाले आले चल नाल वे हो सोनी वाले आले चल नाल वे हो सोनी वाले आले चल नाल वे थैंक यू सो अब हम आपके साथ सिर्फ 10 मिनट और है तो जरूर खूब दाद दीजिए मन्नू को भी और फिर लेट्स ऑल बी अ पार्ट ऑफ दिस होल जी इवन मोर सो तो अभी तक हमने पंजाब के पीरों फ़कीरों को जाना उनके इश्क के किस्सों को जाना अब पंजाब के शूरवीरों के बारे में बात करते हैं इतने शूरवीर हैं कि क्या बात की जाए हाँ ये भी बात और बिकॉज अभी लोहड़ी के इस मौके पर हम लोग यहाँ पर हैं तो जो दूल्हा भट्टी जो है उनका लोहड़ी से जो कनेक्ट है वो क्या है और वो कैसे एक किस्से से एक लोकगीत बन गया जिसको हम 3-4 साल जब से अकबर के ज़माने से वो बना हुआ है उसको हर उसमें गाते हैं तो दूल्हा भट्टी का किस्सा बहुत बड़ा है लेकिन वो लोहड़ी से कैसे जुड़ा हुआ है वो हम आपको बताते हैं कि एक दूल्हा भट्टी जो है वो रॉबिन हुड ऑफ पंजाब कहे जाते हैं तो वो गरीब गुरबा की मदद करते थे दीन दुखियों की मदद करते थे मददगार थे बहुत तो एक गांव में 2 लड़कियां रहती थी बहुत सुंदर थी उस वक्त में 14-15 साल की होंगी तो उनके माँ बाप नहीं थे गरीब थी उनका एक चाचा था जो उनकी ज़्यादा परवाह नहीं किया करता था तो बादशाह अकबर का ज़माना था तो बादशाह अकबर की सवारी वहाँ से उस गांव से गुजरने वाली थी तो ज़मींदारों और उसके चाचा ने मिलकर प्लान किया कि हम इन दोनों को क्योंकि ये बहुत सुंदर हैं बादशाह अकबर को पेश कर देते हो सकता है बादशाह अकबर हमारे गांव का जो कर है वो माफ़ कर दे अब ये बात जब दूल्हा भट्टी को पता चलती है तो वो अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचता है 2 काबिल लड़के देखता है उनके साथ उन लड़कियों का उनकी शादी करवाता है और वो सब इतना आनंद फानंद में होता है कि उसके पास उस वक्त पे देने के लिए कुछ नहीं होता तो
तो एक सेर शक्कर वो जो है उन लड़कियों को शगुन के तौर पर देता है, और फिर जो चाचा है, जो ज़मींदार है, उनकी खूब खैर खबर लेता है। तो वो जो लोकगीत है और उसका क्या मतलब है और वो कैसे जुड़ा हुआ, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। मुझे भी नहीं मालूम था, अच्छा लगा जब पता चला। वो इस तरह से लोकगीत आप जानते हैं सबके, सुंदर मुंदरिये होए तेरा कौन विचारा होए। तो सबके साथ सुंदरी गाएं। मुंदरी, आप तुम्हारा इस जीवन में कोई नहीं अच्छा है। पहले आप एक्सप्लेन करेंगे, मैंने कहा साथ साथ गाएं। हाँ चलिए आप सब भी बोले जो साथ जो में। अगर समझ आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छे गाएंगे। अच्छा ठीक है चलिए समझाइए। सुंदर मुंदरिये होए तेरा कौन बेचारा होए, तुम्हारा इस दुनिया में कौन है। दूल्हा भट्टी वाला होए दुल्हे धी व्याई होए। दूल्हा भट्टी जो है तुम्हारे मतलब उनके बाप की तरह है, जिसने अपनी बेटी ब्याही है उनके साथ। शेर शक्कर आई होए, दूल्हा भट्टी ने कुड़ी दे बोझे पाई। तो एक उसके पास कुछ नहीं था, तो एक शेर शक्कर उसने शगुन के तौर पर उन्हें दिया। आगे की लाइन भूल जाता हूं मैं, तो मैं सुंदर मुंदरे होए तेरा कौन विचारा होए, दूल्हा भट्टी वाला होए दुल्हे धी व्याई होए, शेर शक्कर आई होए कुड़ी दे बोझे पाई होए, कुड़ी दा लाल पटाखा होए। वाह कुड़ी दा लाल पटाखा होए, कुड़ी दा, सालू सालू। जी वही। तो जो लड़कियां हैं वो बहुत लाल पटाखा है, बहुत सुंदर हैं और गरीब हैं। तो ये उसके मायने हैं, इससे वो किस्से से लोकगीत बना है। अब रेनी जी आप, नहीं नहीं हम सब करेंगे इसको, रिनी जी नहीं आप जी, भी। जी। जी उनको जिनको ज़्यादा उनको बुला लीजिए। ऑल्सो लोहड़ी की ईव है तो इट शुड बी पूरे जोश के साथ। चलिए आइए बोले। सुंदर मुंदरिये होए, सुंदर मुंदरिए ओए बोलिए। तेरा कौन बेचारा। ओए आइए प्लीज, आई वांट वन ऑफ यू टू कम हियर। आइए हु इज सिंगिंग, प्लीज कम हियर। आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाउ नाइस। अरे हम क्या गाएंगे। आई 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 आई। नहीं नहीं प्लीज आप आइए। मीना, So Meena is with us who will sing this. इसमें लिखा हुआ है नहीं सुंदर मुंदरिये होए। होए बोलना है आपको। मुंदरिये होए, सुंदर मुंदरिये होए, सुंदर मुंदरिये होए, सुंदर बेचारा होए, सुंदर लट्टू बारा होए, कुड़ी दी व्याई होए, ढेर शक्कर पाई होए, कुड़ी दा सालू फाटा होए, सालू कौन समेटे होए, और नंदन नंदना होए, नंदन नंदन वाह, 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 वाह। होए, नंदन होए, कुड़ी दा बेचारा होए, कुड़ी दा सालू फाटा होए, सालू कौन समेटे होए, कुड़ी ना नंदना होए। सानू लोड़ी दे दे ओए तेरी बसे जोड़ी होए। ओ सानू लोए दे लोड़ी होए तेरी बसे जोड़ी होए। ओ सानू दे दे लोड़ी होए, सानू दे दे लोड़ी होए। So the first Lodi is always celebrated when there's a new wedding in the house, when there's a new child in the house. So we are all together here. Thank you, Meena ji. Thank you very much. मैं ठीक हूँ। जब तक कायनात रहे पंजाब तू झूमता रहे। जब तक कायनात रहे पंजाब तू गुलजार रहे। जब तक कायनात रहे
पंजाब तेरे सर पर इश्क का ताज रहे, जब तक कायनात रहे। पंजाब तू दहाड़ता रहे, जब तक कायनात रहे। पंजाब तेरी सरदारी रहे, जब तक कायनात रहे। पंजाब तू सलामत रहे, जब तक कायनात रहे। पंजाब तू सलामत रहे। वाह वाह। Mandira, Preeti, it would be nice that you're there. We are singing 2 more songs. Don't worry. Come and dance with us. So, Punjab, what it was, what it has been, but today also, today, आज के दिन भी कुछ चीज़ें ऐसी गाई जा रही हैं जो हर एक के दिल को छूती हैं. I'll hum a few lines of those and then we will celebrate Punjab in a big way, and I want all of you to participate in the rhythms of Punjab. ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਲਾਵਾਂ, ਹਾਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ, ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਭੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਏ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਝੂਮ 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 ਝੂਮ, ਤੂੰ ਝੂਮ 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 ਝੂਮ, ਤੂੰ ਝੂਮ 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 तू झूम, तू झूम, तू झूम 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 झूम, ओ तू झूम 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 झूम. मैं दीवानी कुछ ना जाना, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी कुछ ना जाना, हाँ मैं दीवानी कुछ ना जाना, मस्त होके गावा, मैं दीवानी कुछ ना जाना, मस्त होके गावा, दुनिया राजी करके कमले, दुनिया राजी करके कमले, फिर भी चैन ना आना, सारी खुशियां मिल जावण ते पिछे की रह जाना, सारी खुशियां मिल जावण ते पिछे की रह जाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, हाँ तेरे बस में, तेरे बस में, तेरे बस में, तेरे बस में, तेरे बस में
चार चिराग तेरे. Now we are celebrating our Punjab. चार चिराग तेरे बलण हमेशा. मंदिरा please come, Preeti please come. आइए. Rachna, who's been working so hard for this evening. The Agla Varka team. And we have become very much a part of Agla Varka. चलिए आप पहले म्यूजिक से शुरू करिए and we want you to झूम. हाँ आइए डफ के साथ आइए. आपके साथ में झूमिए. Please, all of you can join Preeti and everyone. उठ जाइए. Get up where you are. Why don't you get up? Come on. 3 cheers to all this team, Agla Varka team. राग तेरे बलड़ हमेशा. चार चराग तेरे बलड़ हमेशा. चार चराग तेरे बलड़ हमेशा. सिंधवा में बालड़. सिंधवा में बालड़ आया बला. झूले लालड़ हो झूले लालड़. हाँ झूले लालड़. सिंधड़ी दा सेवड़ दा. सिंधड़ी दा सेवड़ दा. सतीशा बास कलंदर. हो दमादम मस्त कलंदर. दमादम मस्त कलंदर. दमादम मस्त कलंदर. दमादम मस्त कलंदर. अलीदा पहला नंबर. दमादम मस्त कलंदर. अलीदा पहला नंबर. दमादम मस्त कलंदर. घनन घनन तेरी नौबत बाजे. 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 घनन 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 घनन
you. बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया for this fabulous audience. I think I just became one with them and one with you. Thank you. To all my friends who are sitting here, my family, and the new family which I have here. Without you, it could have not been possible. Thank you. Uh, To be a proper Thanksgiving for all my. yes. Ladies Ladies and gentlemen, just a small vote of thanks on behalf of Agla Varka, that's Mandira Preeti and myself, Rachna. Just like to say thank you to everyone who turned up today. And very, very special thanks to Rini ji, Manu ji, and to all the musicians who are here. Please give them a big round of applause. And a very big thanks to everyone at the quorum, Shawnee, Chaitanya, and Vikram especially, for helping us put this together. Thank you.